एक मिनट. Okay, you guys are. I'm the host. Shubham. Okay, you're the. Oh, hi sir. नहीं, the thing is ना, फिर वो बच्चे मुझे chat कैसे भेजेंगे? Sorry, वो. 2 minutes. Sorry, I'm sorry. 2 minutes. अच्छा, okay. I'm done, ma'am. You can continue. Okay, no problem, sir. Thank you. Okay, all right. So here we are. Like I was describing to you, wind जो होता है, it is most effective when you let it run free, okay? And for a long, over a longer distance, over a greater space, उसको अपना जो velocity है उसको achieve करने के लिए enough space and ऑब्स्टिकल फ्री एरिया देना चाहिए. ऑब्स्टिकल फ्री मतलब उसको अभी यहाँ पे अपने यहाँ पे शहरों में somewhere in the cities, if you have so many buildings and other things coming up, structures coming up, तो वो wind, how will the wind ever achieve its maximum potential? नहीं achieve कर सकता है, right? So it makes sense कि आपको ये जो एओलियन टोपोग्राफी होता है, it is best observed in something like deserts which are pretty obstacle free, right? When it comes to wind, ऊपर से उसको थोड़ा सा sand मिल जाता है. The sand also is the general process and everything, so it makes sense, right? So please remember कि wind is best. ये सबसे best दिखता है आपको. Action of wind in deserts and semi-arid regions. यहाँ पे आपको सबसे best दिखता है wind की वजह से जो भी erosional depositional landforms होते हैं ना, those are best observed over here. Okay, now let's see how that works. Heated desert flow. The desert floor is heated, right? During the day, especially, the desert floor will be heated. More often than not, हम hot deserts के बारे में बात करते हैं, necessarily cold deserts के बारे में ही. लेकिन the desert flow will be slightly heated. अभी उसमें क्या होता है ना? It causes the air. अभी heated air है, heated desert floor है, तो उसके आसपास का जो भी air होता है ना, वो rise करता है. Okay, it rises with the turbulence, and कोई भी obstruction जो होगा उसके path में, like कोई पत्थर है, कुछ और है, तो it will set up eddies, whirlwinds, updrafts, downdrafts. Updraft माने ऊपर जाती है wind, okay? Downdraft माने नीचे आता है wind. Eddies माने ऐसे गोल गोल, जो currents set up होते हैं. Whirlwinds माने vertically वो ऐसे गोल गोल set up होता है wind, okay? That sort of a thing. So ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में विंड मूव करता है, ओके, इन दैट रीजन. नाउ फोर्सेस कौन से होते हैं? वन, फर्स्ट ऑफ ऑल अब्रेजन, ओके. few sand particles, sand के finer particles. It carries these particles with itself. Then when the wind goes and crashes against a particular rock, the sand particles that the wind carries also go and crash against that rock. So those cause the scratching and the scraping and the abrasion, okay? So it is these sand particles that the wind carries that will cause all the abrasion and scratching and scraping. It is not the wind that affects it. Wind सिर्फ velocity देता है, momentum देता है, अच्छा खासा momentum, okay? कि ये लो, this is what is going to cause abrasion. But the actual abrasion is caused by the sand particles that the wind carries, okay? But force is obviously the wind, so we consider it erosion caused by the wind, okay? Attrition जो होता है, that is the those particles that the wind carries, they rub against each other also. If they are going to rub against any object that is, or any sort of object that, or obstacle that lies in its path, then they are also, these little sand particles are also going to rub against each other and they get reduced in size. हमने attrition पहले देखा था, remember? And then another force that acts, another important force that acts here is deflation. आपको इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का मतलब समझता है क्या? इन्फ्लेशन माने आप बलून में जब हवा भर देते हैं, खाली बलून होता है, इफ यू फिल इट विद एयर, देन द बलून इज इन्फ्लेटेड, है ना? बलून इन्फ्लेट हो जाता है. ऑन द अदर हैंड, व्हेन दैट एयर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बलून डिफ्लेट्स. बेटर आई थिंक यू वुड रिलेट मोर टू टायर्स, कार के टायर्स. तो उसमें, या फिर बाइक के टायर्स जो होते हैं, उसमें जब हवा फिल की जाती है तो द टायर इज इन्फ्लेटेड. उसकी हवा जब निकल जाती है, सो उसको आप जिसको फ्लैट कहते हैं, इट इज एक्चुअली अ डिफ्लेटेड टायर, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. तो ये डिफ्लेशन का जो एक्टिविटी होता है ना, उसमें क्या हो जाता है कि व्हाटएवर जो भी कंटेंट था, हवा या जो भी था ना, वो निकल जाता है, वो मटेरियल निकल जाता है, ओके? सो डिफ्लेशन में, व्हेन इट कम्स टू एओलियन टोपोग्राफी, यहाँ पे डिफ्लेशन का मतलब होता है कि वो जो सैंड होता है ना, दैट इज सैंड
sand or loose unconsolidated materials, finer loose unconsolidated materials, those are all lifted and blown away. Okay, so they are just blown away, they are just carried away. Blown away is a better way than saying carried away. They're just because of the velocity of the wind and the the impact of the wind, those particles, those loose unconsolidated sand particles are just simply carried away, blown away. Okay, now impact जो होता है, that is by the sheer force of momentum. I told you, right, wind का जो quality है जो यहाँ पे matter करता है, it is the momentum. वो momentum बहुत strong होता है wind का, so उसकी वजह से ये सब कुछ हो जाता है. मतलब जो भी erosion होना है, वो impact जो है या erosion जो है, it happens by momentum. Okay, sheer force of momentum. Now weather debris वगैरह जो होती है, अभी ये wind obviously कुछ तो eroded debris छोड़ जाएगा, right, पीछे. तो these debris जो होती है, they are moved by sheet rain and wind. कभी कभी ना ऐसे बहुत जोर की हवा चलती है या फिर बारिश आ जाती है, थोड़ी सी बारिश आ जाती है, but then it tends to wash away almost anything and everything in its path. Okay, तो वो जो बारिश होती है या हवा चलती है, तो उसके चक्कर में usually all those weather debris are washed away. Okay, so ये basic points है आपके aeolian topography के. Now let's look at the different landforms that are formed over here. Erosional landforms में you have pediments and pediplanes, inselbergs, mesas and buttes, ventifex and drycanter, rock pedestals, mushroom rocks और गोर. ये सब कुछ एक ही है. Rock pedestals, mushroom rocks, गोर है ना, उसके अलग अलग नाम है. Okay, zugins and yardangs, ये एक interesting landform है. Deflation hollows and caves, bolsons, playas और salinas. Okay, ये एक these are important ones. So ये erosional landforms हुए. Depositional landforms में सबसे important landform would be sand dunes. तो sand dunes के अलग अलग types होते हैं and वो अलग अलग conditions में बनते हैं. Sand supply कितना है, कितना नहीं है, रास्ते में obstacle है या नहीं है, vegetation है या नहीं है, slope कैसा है land का, हवा कितनी तेज चल रही है, नहीं चल रही है, इस सारे details पे like all these conditions को consider करके sand dunes का shape बनता है. So these are those different sand dunes that are formed. They vary in shape, size, duration, सब में vary करते हैं. Okay, मतलब कितने देर के लिए last करते हैं, so on so forth, कितने permanent, non semi permanent होते हैं ऐसे. Sand dunes are not necessarily permanent to people. In fact, they are the they are one landform जिसको आप permanence ये adjective नहीं attach कर सकते. Okay. Bajadas और bajadas जो होते हैं वो those are one very important depositional landform, and then lowest plateaus, lowest plains, lowest plateaus, lowest itself. Okay, so that would be considered as a depositional landform. ठीक है, now let's look into one by one. ऐसे सारे erosional landforms को consider करते हैं. Pediment, सबसे पहले जो landform हम consider करते हैं, that's called as a pediment. Okay, pediment जो होता है पेडिमेंट जो होता है, पेडी का मतलब होता है फुट, पेडी मीन्स फुट. ओके, सो पेडिमेंट का मतलब होता है sort of a flat expanse which occurs at the foot of the mountain. Okay, माउंटेन के फुट पे जो होगा ना, ये माउंटेन नजर आ रहा है, राइट, आपको, यू कैन सी दीज माउंटेन्स, राइट, तो उसके फुट में आपको ये जो भी एक्सपांस नजर आ रहा है, ये वाला ना जिसको मैंने अभी शेड किया है, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ पेडिमेंट. ओके, तो ये यूजुअली ना ऐसा जेंटली स्लोपिंग होता है, फ्लैट एक्सपांस होता है, रॉकी फ्लोर. ओके, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड. दिस इज यूजुअली अ रॉकी फ्लोर व्हिच इज फॉर्म्ड एट द फुट ऑफ द माउंटेन और अ क्लिफ, है ना, क्लिफ या माउंटेन के फुट पे यूजुअली मिल जाता है. एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ अ माउंटेन फ्रंट बाय रनिंग वाटर. यूजुअली कोई माउंटेन फ्रंट के सामने से अगर एक मेजर स्ट्रीम ऑफ वाटर जाता हो एंड उसने इरोड कर दिया हो इस जगह को पूरी तरह से, so then that would be called as a pediment. Okay, next you look at a pediplane. Pediplanes जो होती है, one minute, okay, now we are good. तो pediplanes जो होते हैं, those are interestingly okay, pediplanes जो होते हैं, those are interestingly they show continued erosion of several pediments together. Okay, अगर बहुत सारे ये एक ऐसा pediment नजर आ रहा है, right, so if there are several pediments that are left behind, so आपको ना ऐसे low featureless plains दिखते हैं. featureless मतलब बहुत ज्यादा relief नहीं नजर आता है आपको उस plain में. Okay, relief माने ना ऐसे माउंटेन वगैरह जैसे स्ट्रक्चर्स, थोड़े से एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स, तो ऐसा
कोई ज्यादा फीचर्स नहीं है, ऐसे प्लेन ग्राउंड है जहां तक नजर आता है आपको, कि प्लेन लैंड है। तो लो फीचरलेस प्लेन्स जो होती है, जो बहुत सारी पेडिमेंट्स एक साथ मिल जाने पे बनते हैं, आर यूजुअली कॉल्ड एज पेडिप्लेन्स। ओके, सो ये जो ओरिजिनल माउंटेन था, दिस इज योर ओरिजिनल माउंटेन। ओके, ह्यूज माउंटेन होता है, लेकिन अब वो इरोजन से एंड वेदरिंग से छोटा 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 बन गया है, तो एक छोटे से फीचर की तरह दिखता है, रिलिक्ट फीचर। और थोड़ा सा रिलिक्ट ही बोल सकते हैं। रिलिक्ट मतलब ऐसे ancient, something that is left behind, that sort of a thing. So ऐसा relict feature बनता है, एंड उसको फेमसली इंसेलबर्ग कहते हैं। तो इंसेलबर्ग इज अ वेरी फेमस टर्म जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके, इंसेलबर्ग ना थोड़ा सा जर्मन टर्म है। आइसोलेटेड, आई थिंक इट मीन्स आइसोलेटेड और अकेला, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो स्ट्रैंडेड वगैरह ऐसे कुछ मीन करता है वो। So Inselberg usually means कि it is the only mountain or the only hill or the only feature of relief, right? In that huge pediplane, इकलौता ये relief feature दिखता है आपको, है ना? So this is called as Inselberg. इसको Inselberg कहते हैं। समझा? Good? Okay. ठीक है। तो pediment and pediplenes को याद रखिएगा, famous important features होते हैं। Massage and buds आसान है। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर नजर आ रहा है, एक मैसा है, दूसरा बट है। ये जो मैसा होता है ना, क्या ब्यूट्स बुलाएंगे क्या उसको? नहीं यार, आई थिंक उसको बट्स ही बुलाते हैं। एनीवेज, तो मैसाज जो होती है ना, दे आर, मैसा का मतलब, ये स्पेनिश वर्ड है, तो उसका मतलब होता है टेबल। ओके, मैसा जो होता है ना, वो स्पेनिश में उसका मतलब शायद, या लैटिन में, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक स्पेनिश, इट्स स्पेनिश। सो उसमें उसको टेबल कहते हैं। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको टेबल जैसा नजर आ रहा है कि कैन यू फील दिस इज अ टैबुलर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, है ना? तो ये ऐसा टैबुलर नहीं, टेबल जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। तो मैसाज जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, टेबल लाइक लैंड मासेस होते हैं। देर उनका ना, ये ऊपर वाला जो लेयर है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है। ओके, दिस, ये जो ऊपर वाला लेयर है ना, दिस वन, ये ऊपर की तरफ जो लेयर होता है ना, ये वाला, दिस पोर्शन, ये बहुत रेजिस्टेंट होता है। ओके, दिस इज वेरी, ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर होता है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है, एंड ये जो साइड के, ये जो बाजू के साइड्स होते हैं ना, वो बहुत स्टीप होते हैं। सो दिस इज वंस अगेन अ वेरी, मैसाज जो होते हैं वो बहुत यूनिक फीचर है ऑफ द डेजर्ट टोपोग्राफी। ओके, डेजर्ट्स का एक बहुत यूनिक फीचर है ये। जस्ट रिमेंबर कि मैसाज ना टेबल्स की तरह दिखते हैं, इसलिए उनको मैसाज बुलाते हैं। ओके, अभी बट्स या ब्यूट्स, whichever pronunciation you prefer, तो वो जो होते हैं, those show you continued erosion of mesas। ये मैसा जो होता है ना, इसको भी ऐसे साइड से इरोड करो, ऊपर से इरोड करो, ये ना, जब ये ज्यादा इरोड होने लगता है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, continued erosion of mesas will cause them to be reduced into isolated flat-topped hills. Okay, ये ऊपर का अभी भी बहुत रेजिस्टेंट है रॉक, तो उसका इरोजन थोड़ा कम होता है, लेकिन आजू बाजू का ज्यादा हो जाता है। तो वैसा का जो रिड्यूस्ड, ज्यादा इरोडेड फॉर्म है, that will be called as buds. Okay, so arid countries में ना यूजुअली जो ऐसे एक, यूजुअली ना यू फाइंड अ मेसा और अ बट ओवर हियर, ये एक, इसको मेसा या बट बुलाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर बाजू में कैनियन होता है, यहाँ पर बाजू में कैनियन होता है, सेपरेटेड बाय डीप कैनियंस। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मैं ना आपको, आई टेक यू बैक टू वाचिंग दिस, क्या? हाँ, ओके, ये देखिए, अभी ये मेसा या बट नहीं है। ओके, दिस वोंट बी नेसेसरली कॉल्ड एज अ मेसा और अ बट, लेकिन यूजुअली क्या हो जाता है ना, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, इस वाला, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, उसको देख लीजिए। इसके इस तरफ एक कैनियन जैसा स्ट्रक्चर है, इस तरफ एक कैनियन जैसा स्ट्रक्चर है ना? तो यूजुअली दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। या फिर एक्चुअल कैनियन में दिखा दूं मैं आपको, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिएगा, ये वाला, दिस वन। ओके, इफ दिस रिमेन्स आइसोलेटेड, अगर ये आइसोलेट हो जाएगा, तो इसकी एक तरफ ये कैनियन वाला स्ट्रक्चर होगा, और दूसरी तरफ यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक और कैनियन जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो मेसाज या बट्स जो होते हैं ना, वो फेमसली ऐसे कैनियन के बीच में पाए जाते हैं। that is what this is trying to say. Okay, the note is trying to say. ठीक है, so those are mesas and buttes, right, that you come across mushroom rocks or rock pedestals या gore. Okay, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। अभी इसमें क्लियरली देख लीजिएगा कि आपको ये मशरूम शेप नजर आता है, नीचे ना एक छोटा सा स्टॉक होता है। ओके,
स्टॉक मतलब वो पेड़ का नहीं, एक छोटा सा स्टॉक होता है, प्लांट का एक नीचे एक स्टॉक होता है एंड देन ऊपर फ्लावर होता है, राइट? सो एक नीचे ऐसे स्टॉक मिल जाता है आपको, नैरो शॉर्टेंड यूजुअली स्टॉक मिल जाता है, एंड देन ऊपर का जो रॉक का शेप है ना, दैट इज मोर और लेस अ लिटिल सर्कुलर इन शेप, थोड़ा सा मशरूम जैसा दिखता है ना, वैसा नजर आता है ये। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ मशरूम रॉक और अ रॉक पेडेस्टल। ऐसा लगता है कि किसी ने रॉक्स को अरेंज किया है ऐसे पेडेस्टल पे। ओके, एंड लोकल वर्ड है कोई गोर, so that's the word used. Okay, famously this is formed by the sand blasting effect. Okay, मुझे बताइए जब सैंड चलता है यूजुअली ना, ये रॉक जो होगा ये कुछ इस शेप में होगा। ओके, दैट इज व्हाट द ओरिजिनल शेप ऑफ द रॉक मस्ट बी, this है ना, this must be the original shape of the rock. Now what happens is usually जो sand होता है ना, the sand that blows across the wind, the sand नहीं, the wind that blows across the desert, it carries some sand with itself. Okay, अब ये sand heavy होता है, तो विंड अगर भी काफी ऊपर तक चलता होगा, विंड तो काफी काफी लाइक हाइट तक चलता है, लेकिन सैंड की जो मेजर सैंड के जो पार्टिकल्स है वो विंड अपने साथ थोड़ा सा लोअर लेवल पे कैरी करता है। ओके, से अबाउट यहाँ के लेवल तक या यहाँ के लेवल तक। ओके, सो इतने लेवल तक सैंड कैरी करता है अपने अपने मतलब सैंड इज कैरीड इन द विंड। ओके, तो ये इरोजन सबसे इफेक्टिव नीचे वाले लेवल पे होता है, क्लोजर टू द ग्राउंड। ओके, जहाँ पे फ्रिक्शन इज द ग्रेटेस्ट ना, तो वो फ्रिक्शन इज ऑलवेज at a level that is closer to the ground. Okay, तो ये जो बेस होता है, इस रॉक का जो बेस है ना, इस यहाँ तक इरोजन सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये जो स्टॉक है, यहाँ पे भी स्टॉक देखिए नैरो है, राइट? एंड देन ऊपर की तरफ इतना इरोजन नहीं होता है, सो द रॉक प्रीटी मच मेंटेन्स अ स्मूदर सर्कुलर टॉप। ओके, उसका जो टॉप होता है उस रॉक का वो स्मूथ सर्कुलर होता है, वही नीचे का जो बेस होता है उसका इरोजन ज्यादा हो जाता है, एंड दैट लुक्स लाइक अ स्टेम और स्टॉक। ठीक है, रिमेम्बर मशरूम रॉक्स कैसे बनते हैं, बिकॉज उसके लिए बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लाइक यू शुड नॉट बी एबल, उसको भूलना थोड़ा ये हो जाएगा। ज़ुइगन्स एंड यारदांग्स, ज़ुइगन्स एंड यारदांग्स जो होते हैं उसका एक बहुत देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक दिस अटैच्ड टू इट। ज़ुइगन्स एंड यारदांग्स के साथ ना एक बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन अटैच्ड होती है कि दिस इज ना, यहाँ पर रॉक्स जो होते हैं ना, दोनों केसेस में रॉक्स आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट मैनर। ओके, मतलब ऑल्टरनेटली हार्ड रॉक्स सॉफ्ट रॉक्स, हार्ड रॉक्स सॉफ्ट रॉक्स है। ओके, ऐसे प्लेस्ड हो जाते हैं। अभी ज़ुइगन एंड यारदांग्स इसलिए अलग अलग बनते हैं बिकॉज एक केस में, ज़ुइगन के केस में ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स का। ओके, एक लेयर हार्ड रॉक्स का, फिर उसके दिस इज हार्ड रॉक्स का लेयर, उसके ऊपर सॉफ्ट रॉक्स का लेयर, फिर वापस हार्ड रॉक्स का लेयर, देन सॉफ्ट रॉक्स का लेयर। इस तरह से अरेंजमेंट होती है इन केस ऑफ अ ज़ुइगन। ज़ुइगन में हमेशा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। ओके, it has a horizontal alternate arrangement. Okay, whereas यारदांग्स के केस में यही अरेंजमेंट वर्टिकली प्लेस्ड है। ओके, ये ऑरेंज वाला जो है वो हार्ड रॉक है, लेस ऑरेंज वाला जो है वो सॉफ्ट रॉक है, फिर ये वापस हार्ड रॉक है, देन दिस इज अगेन सॉफ्ट रॉक, वंस अगेन दिस इज हार्ड, एंड देन दिस ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है दैट इज अ सॉफ्ट रॉक। ओके, तो ये वर्टिकल बैंड्स में अरेंज होता है जब यारदांग्स बनते हैं। एंड अगर यही अरेंजमेंट ऑल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल तरीके से हो, if they are placed horizontally, तो then the chances of a ज़ुइगन being formed is greater. Okay, ठीक है, now let's look at how this forms. Okay, अब ज़ुइगन जो होते हैं, ज़ुइगन आर वंस अगेन टैबुलर मासेस है, उसमें ना क्या हो जाता है, यूजुअली सॉफ्ट रॉक जो होता है एट यूजुअली ऊपर का जो बेस होता, ऊपर का जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन देख लीजिए, दिस पोर्शन दिस पोर्शन दिस पोर्शन, ये हार्ड रॉक्स है। ओके, तो यूजुअली ऊपर हार्ड रॉक रहता है और नीचे की तरफ थोड़ा सा सॉफ्टर रॉक होगा। ओके, द सॉफ्टर रॉक लाइज बीनीथ। ऑलराइट, तो ये जो हार्ड रॉक होता है ना, उसको इरोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, लेकिन सॉफ्टर रॉक जो होता है वो बहुत आसानी से इरोड हो जाता है। तो उसकी वजह से ना ये जो हार्ड रॉक्स होते हैं ना, दे स्टैंड आउट लाइक रिजेस, है ना, रिज की तरह। ये कैन यू मेक आउट हाउ दीज हार्ड रॉक्स आर स्टैंडिंग आउट लाइक रिजेस, एंड ये सॉफ्टर रॉक्स के यहाँ पे ऐसा वैली जैसा दिखता है ना, इट फॉर्म्स अ वैली ओवर देयर। सो उसको ना ऐसे रिज एंड फरो ये बुलाते हैं, what do you say, landscape बुलाते हैं। ओके, this becomes a ridge and furrow landscape because you can clearly see कि ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा टफ है, इसको रिड्यूस, इसको इसको इरोड नहीं कर पाते, whereas softer rock gets eroded quickly। नीचे वाला जो रॉक होता है ना वो ज्यादा आसानी से इरोड हो जाता है। ओके, लेकिन ऊपर का रॉक उसको प्रोटेक्ट करता है, so you get a ridge and furrow landscape. Okay, that's a ज़ुइगन।
Whereas let's look at what yardangs are. Yardangs में यही अरेंजमेंट वर्टिकली मिलेगा. अभी ये बहुत आसान है देखना. अब ये वाला वर्टिकल अरेंजमेंट को देख लीजिएगा, एक मिनट. ये वाली अरेंजमेंट को देख लीजिएगा. वर्टिकली अरेंज्ड है ये, वर्टिकली अरेंज्ड हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स. नाउ व्हाट हैपेंस, बैंड्स, अल्टरनेट बैंड्स है, राइट. तो सॉफ्टर रॉक्स जो होंगे, ये बीच वाला जो सॉफ्टर रॉक है, दिस और ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, ओके. तो ये दोनों सॉफ्ट रॉक्स है. तो वो जो सॉफ्टर रॉक्स होते हैं वो इजीली जल्दी से इरोड हो जाएंगे. दैट मेक्स मोर सेंस बिकॉज दे आर सॉफ्टर इन नेचर. एंड उसकी वजह से ना यूजुअली वहां पर ऐसे नैरो कॉरिडोर्स बन जाते हैं, ओके. उसको आई थिंक द लोकल वर्ड इज वादी. उसको लोकल वर्ड जो है होता है ना, आई थिंक अरेबिया का वर्ड है ये, अरबिक वर्ड है ये, और समवेयर यूज्ड मे बी यूज्ड इन अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका और समथिंग. उसको ना वादी कहते हैं, वादी, ओके. सो यूजुअली ना ये व्हाट यू फाइंड इज इन अ यारदंग, आपको क्या दिखता है कि आपको एक ऐसे हार्ड रॉक का रिज दिखता है, एंड देन उसके बीच में थोड़ा सा खाली सा स्पेस है, ओके. बिकॉज यहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक हुआ करता था दैट हैज बीन इरोडेड नाउ, ओके. देन वापस हार्ड रॉक दिखता है, दिस इज हार्ड रॉक्स. एंड जहाँ पे सॉफ्ट रॉक हुआ करता था वंस अगेन वहां पे थोड़ा सा स्पेस नजर आ जाता है. तो व्हाट यू फील इज लाइक यू वॉकिंग बिटवीन ऐसे ये जो सॉफ्ट रॉक जहाँ हुआ करता था ना, वैसे एम्प्टी कॉरिडोर की तरह नजर आता है, ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज यारदांग. इस स्ट्रक्चर को यारदांग्स बुलाते हैं. इजी इनफ, ओके. ठीक है. So this is the difference between Zuigen and Yardangs. Okay. Next erosional feature जो है आपका, the next erosional feature that you come across is, and I'm telling you once again, people, जब आपको exams में questions पूछे जाते हैं तो आपको necessarily ये नहीं पूछा जाएगा कि Zuigen and Yardangs में क्या फर्क है. That would be a bit tough of a, मतलब थोड़ा सा tough question होगा वो अगर आपको कोई पूछे भी तो. The more probable question would be कि Zuigen जो है वो किस तरह का फीचर है. इज इट एन इरोजनल फीचर और इज इट एन डिपोजिशनल फीचर, और मोर इम्पोर्टेंटली डज इट विच एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ज़ुइगेन, विंड, ग्लेशियर, वाटर, रनिंग वाटर, रिवर वाटर, और देन कोस्ट लाइक सी वाटर. इसमें से क्या बनाता है ज़ुइगेन को. सो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दीज लैंडफॉर्म्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि ये इरोजनल है या डिपोजिशनल है, बिकॉज दैट इज द वन थिंग दैट यू आर आस्क्ड. And very rarely are you asked a lot of information about one single landform. Mostly it is just erosional है या depositional है and कौन सी category को belong करते हैं. So you just have to know कि ये किस category के landforms है. Wind की वजह से बनते हैं, river water की वजह से बनते हैं, या फिर whatever, whichever agent we are considering. ठीक है? We are still on erosional landforms made by the wind, usually found in deserts. Okay? Ventifex and dry canter, ये दोनों देख लीजिएगा. Ventifex interesting होते हैं. वेंटिफैक्स मतलब ऐसे वाले पेबल, यूजुअली पेबल्स कैसे होते हैं, गोल होते हैं, ओके. देन विंड आके उसको साइड से यहाँ से इरोड कर जाएगा, यहाँ से इरोड कर जाएगा, यहाँ से जहाँ कहीं उस सरफेस का उस पेबल का सरफेस मिल जाएगा उसको वो विंड इरोड करता जाता है, ओके. तो उसकी वजह से ना पेबल्स को फैसेट्स आ जाते हैं. आपको ये फेसेस नजर आ रहे हैं क्या? कैन यू मेक आउट द फेसेस, है ना, उस पेबल के ऊपर या उस रॉक के ऊपर जो फेसेस नजर आते हैं ना, तो ऐसा वाला फीचर बन जाता है सैंड ब्लास्टिंग की वजह से, ओके. तो रॉक्स के फ्लैट फेसेस बन जाते हैं, शार्प एजेस मिल जाते हैं रॉक्स को, उसको कहते हैं वेंटिफैक्स, ओके. दीज आर कॉल्ड एज वेंटिफैक्स, ऑलराइट. ड्राई कैंटर उन पेबल्स को कहते हैं जिनके कम से कम 3 फैसेट्स होंगे, जिसको 3 फैसेट्स होंगे ना उसको ड्राई कैंटर कहते हैं, ओके. आई थिंक दिस इज वंस अगेन अ जर्मन ओरिजिन का वर्ड है, ठीक है, चलेगा. वेंटिफैक्स एंड ड्राई कैंटर याद रहेगा. फेसेस एंड एजेस, नॉर्मल पेबल्स या रॉक्स जो होते हैं उसको सैंड ब्लास्टिंग की वजह से जब फेसेस एंड एजेस मिल जाते हैं, सो दैट्स कॉल्ड एज वेंटिफैक्स. एंड अगर तीन फेसेस मिल गए तो उसको ड्राई कैंटर कहेंगे, ओके. नाउ यू कम टू डिफ्लेशन हॉलोज एंड ब्लोआउट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफ्लेशन हॉलोज एंड ब्लोआउट्स जो होता है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म इन डेजर्ट्स, ओके. क्या हो जाता है, दोनों को ऑब्जर्व कर लीजिएगा. ये फ्लैट ग्राउंड पे है और ये थोड़े से वर्टिकल सेक्शन पे है लैंड के, ओके. सो ये दोनों केसेस में हो सकता है. डिफ्लेशन हॉलो जो होता है या ब्लो आउट जिसको कहते हैं, that can be formed on flat land, flat horizontal land, as well as a vertical piece of rock or something like that, okay. तो wind क्या करता है ना, wind will blow away all the unconsolidated material and small depressions बन जाते हैं, okay. For example, इस पत्थर में जब गया था तो ये पत्थर पूरा था ना, this पत्थर was full, like it was complete. तो ये wind
यूजुअली विंड क्या करता है ना, जाके किसी वीकर सेक्शन ऑफ द रॉक को कहीं ना कहीं अटैक कर जाता है, एंड वो दैट वीकर सेक्शन ऑफ द रॉक स्टार्ट्स क्रम्बलिंग, ओके, एंड व्हेन दैट रॉक क्रम्बल्स तो फिर देन इट्स इजियर टू रिमूव द सराउंडिंग मटेरियल, ओके। उसके आसपास का जो ये यूजुअली द रॉक में ही थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है, या फिर विंड एक जगह पे बहुत स्ट्रांगली ब्लो करता है, यू नो, फॉर वेरियस अदर रीजंस। एक एक जगह पे सडनली द विंड स्टार्ट्स टू टेक अवे ऑल द लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स, ओके, एंड देन इस तरह का एक ब्लो आउट बन जाता है। यू कैन सी ना एक ऐसा केव जैसा डिप्रेशन बन गया है इसके अंदर, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लो आउट और अ डिफ्लेशन हॉलो, ओके। नाउ लेट्स सी व्हेन दिस हैपेंस ऑन अ यू नो, इफ ये एडी की वजह से होता है, एडी करंट सेटअप हो जाते हैं ऑफ द विंड, एंड दैट कॉजेस, उसकी वजह से भी यूजुअली एडीज जो होते हैं ना वो ऐसे गोल गोल, यू नो, they turn in this particular direction, okay। तो एडीज जो होते हैं when they are set up तो वो इफेक्ट ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, you know, the process is intensified, the effect is faster, accelerated, so on so forth, okay। Now ये sometimes it can happen because of faulting also, land में faulting हो जाता है, ऊपर से एडी करंट सेटअप हो गए and so on so forth। Sometimes what happens is in this case, इस केस में क्या हो जाता है कि ये जो ग्राउंड लेवल है ना that is reached, okay। So ये आपका डेजर्ट का नॉर्मल लेवल है, okay, ऊपर से। तो now the wind starts blowing and it starts to take away the sand from this region, okay। जैसे जैसे वो यहाँ से sand extract करने लग जाता है, ये इसका जो ये जो एरिया है इसका जो लेवल था that starts to fall, okay। वो जो ग्राउंड का लेवल है that starts to fall, okay। and then finally at some point of, and ये जो sand है ये निकल कर यहीं पे आसपास ही डिपॉजिट कर जाता है। इट इज नॉट लाइक इट्स कैरिंग द सैंड वेरी फार अवे, वो उस ब्लोआउट के आसपास ही सैंड को डिपॉजिट कर देता है। जो भी सैंड एक जगह से निकाला ना, एडी 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 करंट्स जो होते हैं ना वो बहुत दूर तक नहीं ट्रैवल कर रहे, ओके, वो छोटी डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं। दे आर सिंपली सेट अप गोल 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 गोल, राउंड एंड राउंड इन दैट सेम रीजन, ओके। सो ये जो सैंड यहाँ से निकाला इस पोजिशन से, ये स्टार पोजिशन से जहाँ से सैंड निकाला है, उसको उठा के ये साइड में यहाँ पे ये जो ड्यून्स जैसा स्ट्रक्चर बना है वहीं पे लगा देते, ओके। That is deposited over there. How do we dig for stuff? They say it is like the wind is digging for stuff, okay। So what happens is कभी कभी water table is reached, ये दिख रहा है पानी, water table is reached and then the water starts seeping out, okay। नीचे से पानी, नीचे से ground से the water starts seeping out and usually जब पानी seep out करता है तो फिर oasis बनती है वहाँ पे desert में ना, oasis बनते हैं। तो deflation hollows are very closely related to oasis, लाइक ओएसिस का फॉर्मेशन एक इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। ओके, more erosional landforms and then we go to depositional, क्या? Give me a minute, more erosional landforms, balsams and playas, okay। Playas or salinars, salars, shorts, whichever region आप उसको बोलेंगे, okay। balsams जो होते हैं ना, बॉल्सन का एग्जांपल ये यहाँ पे ये वाले इसमें नजर आ रहा है आपको, कैन यू मेक दिस आउट? हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बॉल्सन का मतलब होता है इट्स द डेजर्ट वैली, ओके। अब ये यूजुअली सेमी एरिड रीजन में बनता है, वेरी क्लियरली सेमी एरिड रीजन का लैंडफॉर्म है ये। तो फ्लैट फ्लोर्ड होता है एंड डेजर्ट का जो वैली होता है ना दैट इज कॉल्ड एज अ बॉल्सन, ओके। सो इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड हिल्स। वो जो बॉल्सन होता है दैट इज सराउंडेड, ये नजर आ रहा है आपको, ये वैली है, ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा का पूरा, दैट्स अ वैली, ओके। वो दो माउंटेन्स के बीच का जो पोर्शन होगा उसको वैली बुलाएंगे, राइट। तो वो जो वैली है ये वो वैली है, बट दिस इज अ डेजर्ट वैली। डेजर्ट वैली इज कॉल्ड एज अ बॉल्सन एंड वो फ्लैट होता है, इट इज एब्सोल्युटली फ्लैट फ्लोर्ड, ओके। ऐसा कुछ वी शेप्ड यू शेप्ड, इट इज फ्लैट फ्लोर्ड बिकॉज आपको वहां पे माउंटेन्स का हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इट इज डेफिनेटली सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड हिल्स, ओके। अभी इस बॉल्सन के अंदर एक प्लाया होता है, ओके, यूजुअली। अब ये प्लाया क्या होता है, इट इज वो भी एक डिप्रेशन है लेकिन छोटा वाला डिप्रेशन है। बॉल्सन कैसे बड़ा वाला डिप्रेशन है ना, वैली है तो बड़ा वाला डिप्रेशन है, तो प्लाया जो होता है वो उस बॉल्सन के अंदर का एक छोटा सा डिप्रेशन होता है। यूजुअली इसमें कभी कभी पानी भर जाता है। फॉर एग्जाम्पल I'll tell you how this works. Suppose there was a river over here, okay, but for some reason वो river has dried up या उसका course change हो गया है या whatever, but the river is not here anymore, okay। पहले हुआ करता था, अब नहीं है, ऐसा रिवर है।
या तो ऐसे केस में वो जो रिवर का पीछे का पानी रह गया था ना, वो इस लेक में भर जाता है, या फिर कभी कभी डिप्रेशन बन जाता है लेकिन बारिश हो जाती है, सो द वाटर रिमेन्स। ओके, लेकिन प्लायाज आर टेम्पररी लेक्स, प्लीज रिमेंबर, वो टेम्पररी लेक्स होते हैं, वो परमानेंट लेक्स नहीं होते, बिकॉज डेजर्ट ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे परमानेंटली पानी होगा। सो ये प्लाया का पानी जब इवेपोरेट हो जाता है, when that water evaporates, what will be left behind? Salts. So glistening white salts are left behind. Okay, तो usually ना कभी कभी आपको वो पानी भी नहीं दिखाई देता है, एंड बस वो सॉल्ट के शीट्स दिखाई देते हैं। ओके, सो स्टिल दैट वुड बी कॉल्ड एज अ प्लाया। ओके, उसको फिर भी प्लाया बुलाते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर इन, उसको सैलिनास या फिर सलाइनास या सैलिनास या फिर सलार्स या शॉट्स बुलाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर शॉट्स इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अफ्रीका। ओके, तो ये ऐसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ओके, गुड, समझा? ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट यू गो टू, अभी हो गया सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो गए। नाउ विल मूव ऑन टू द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ओके, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं विंड के, वो अक्सर डिपोजिशन माने, अब ये विंड जो होता है वो क्या कैरी करेगा पीपल, व्हाट डज द विंड कैरी विद इटसेल्फ? सैंड। तो सैंड को जाके कहीं डिपॉजिट कर दिया एंड देन उसका कुछ बना, तो उसको बोलेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ओके, अभी एक्चुअल रॉक्स तो नहीं डिपॉजिट कर रहा है, जैसे रिवर्स या ग्लेशियर्स करते थे वैसे एक्चुअल रॉक्स नहीं है, तो यूजुअली फाइनर स्टफ डिपॉजिट करता ही है ना, सैंड जैसा। अभी सैंड कोर्स भी हुआ तो भी कितना कोर्स हो सकता है, एंड विंड कितना कोर्स सैंड को ट्रांसफर कर सकता है ना, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सो वी आर वर्किंग एट दैट। सैंड ड्यून्स सबसे 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 इंपॉर्टेंट। ओके, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द विंड। ओके, तो अभी सैंड ड्यून का जो फॉर्मेशन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? मैंने लेक्चर की शुरुआत में बोला था कि कितना सैंड अवेलेबल है, सप्लाई ऑफ द सैंड है ना, कितना अमाउंट अवेलेबल है, स्लोप ऑफ द लैंड क्या है, एंड विंड का डायरेक्शन क्या है, एंड कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में है या नहीं है ना। वो जो विंड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, वर्टिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, हॉरिजॉन्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का सैंड ड्यून बनता है। ओके, अभी मोस्ट सैंड ड्यून्स जो होते हैं फेमसली वो शिफ्ट या रिवर्स कर जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ओके, विंड का जो डायरेक्शन होता है वो जैसे ही बदल जाता है, सैंड ड्यून बदल जाता है। सैंड ड्यून का शेप मतलब उसका जो डायरेक्शन होता है वो भी बदलते रहता है। बाय द वे, यू नो व्हाई, लाइक इससे मुझे याद आया कि देयर इज ऑलवेज दैट थिंग कि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, डेजर्ट्स जो होते हैं ना उसको क्रॉस करना सबसे मुश्किल होता है, बिकॉज कोई परमानेंट लैंडमार्क नहीं है उसमें। If you think that sand dune over there is going to help you, please remember that sand dunes are not permanent features. वो constantly उनका direction change करते हैं depending on wind का direction क्या है. So those are not permanent features. Desert में और कोई ऐसे permanent markers नहीं है. हम अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं यार? Because you know कि मैं destination यहीं तक पहुंचूंगा, फिर मुझे left लेना है, then मुझे right लेना है. This is how you find your way across, like to any place, right? Because there are permanent markers. कि यार यहाँ से यहाँ जाना है, वहां से वहां जाना है. इन अ डेजर्ट ऐसे विद ऑल दैट शिफ्ट लैंडस्केप, आपको कैसे पता? you will be lost in the desert that way. Okay, so deserts are considered, इसीलिए deserts में गुम हो जाना इतना आसान होता है. Not asking you to go to a desert, I'm just telling you that it's very easy to get lost in a desert. Okay, all right. सो एनीवेज, ड्यून माइग्रेशन जो होता है, अब एनी ड्यून्स जो होते हैं वो माइग्रेट भी करते हैं, वो आगे की तरफ मूव करते हैं, पीछे की तरफ मूव करते हैं, वंस अगेन डिपेंडिंग ऑन द लैंड. बट ड्यून माइग्रेशन अगर लैंड की तरफ हो जाए ना, तो देन दैट कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन. दैट्स अ प्रॉब्लम. ये हमारे लिए प्रॉब्लम इशू है. ओके, मतलब प्रॉब्लमैटिक एरिया है. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट शेप्स ऑफ ड्यून्स. ड्यून्स के डिफरेंट शेप्स देखते हैं. ओके, जिसके बेसिस पे सॉरी, ड्यून्स के डिफरेंट शेप्स देखते हैं जिसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है. okay? बारकन्स जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे कॉमन भी है. बारकन्स जो होती है उसका शेप जो होता है वो सबसे आसान है. दैट इज द प्रॉपर, ये वाला नजर आ रहा है आपको, ये वाला, या फिर यहाँ पे ये ऊपर वाला सेक्शन, ओह सॉरी, ये वाला सेक्शन देख लीजिएगा.
वो प्रॉपर जैसा सैंड ड्यून नजर आता है ना आपको, ये वाला, दिस वन बार्कन्स नजर, ये वाला, एक मिनट बताती हूँ, ये वाला नजर आ रहा है बार्कन, दिस वन। ओके, तो वो जो प्रॉपर सैंड ड्यून का शेप होता है जैसे हमने हर जगह पे देखा है, दैट इज अ बार्कन। ओके, उसको बार्कन कहेंगे हम लोग। ऑलराइट, सो बार्कन्स जो होती है ना वो क्रेसेंट शेप ड्यून्स होते हैं। ओके, तो क्रेसेंट शेप मतलब ऐसे इस तरह के शेप में, इस शेप में। ओके, तो क्रेसेंट शेप ड्यून्स होती है। एंड ये जो साइड के फीचर्स है ना उसके, है ना, तो ये जो साइड के फीचर्स है, ये साइड में दिस वंस, जिसको अभी मार्क किया है, उसको विंग्स या हॉर्न्स कहते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज विंग्स और हॉर्न्स एंड दे आर पॉइंटेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। ओके, उसको विंड डायरेक्शन से ऑपोजिट पॉइंट किया जाता है। ओके, सो विंड डायरेक्शन इज दिस इज योर विंड डायरेक्शन। ओके, दे आर पॉइंटेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। नाउ हाँ, ओके, सो हियर वी गो। तो लैंड फ्लैट होता है एंड विंड डायरेक्शन कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे लैंड को कोई स्लोप नहीं है एंड विंड डायरेक्शन कांस्टेंट होता है एंड यू नीड टू हैव अ स्टेडी सप्लाई ऑफ विंड। ऐसे छोटे बड़े विंड के टाइप में नहीं बनते बार्कन्स। ओके, तो बार्कन्स के लिए क्लियरली आपको अच्छा खासा विंड सप्लाई चाहिए, स्टेडी सप्लाई चाहिए विंड का। ओके, नेक्स्ट यू कम अक्रॉस सेफ्स। सेफ्स जो होती है ना, सेफ को कैसा हो जाता है, सेफ कैन बी अ लॉन्गर काइंड ऑफ ड्यून। ओके, वो थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग टाइप का ड्यून होता है। बार्कन्स के ही सिमिलर होता है, लेकिन उसका दो, इस बार्कन्स को कैसे, यू कैन सी टू विंग्स, राइट, ऐसे दो विंग्स नजर आते हैं। तो सेफ को ऐसा कॉमा की तरह एक ही विंग होता है ना, सेफ लुक्स लाइक अ कॉमा, सो उसको एक ही विंग होता है। इसका नाम सेफ इसलिए होता है बिकॉज इन सम लैंग्वेज सेफ का मतलब सोड होता है, तलवार, है ना, तो उसके वो ऐसा तलवार जैसा दिखता है ना, लॉन्ग है एंड ऐसे एक तरफ से कर्व्ड होता है, उसको एक ही विंग है उसका, सो इसलिए इट इज कॉल्ड एज अ सेफ। ओके, सो दोज आर सिमिलर टू बार्कन, सिर्फ एक ही विंग होता है, ये यूजुअली लॉन्ग एंड हाई होते हैं। ओके, दीज आर कंसिडर्ड लॉन्गर एंड हायर। देयर आर दोज दैट आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे पैरेलल टाइप्स, राइट, ऐसे, तो उस तरह का ट्रांसवर्स ड्यून्स बनते हैं आपको। तो ट्रांसवर्स ड्यून्स का मतलब होता है कि जब मल्टीपल बार्कन्स एक साथ ज्वाइन कर जाते हैं ना, तो यूजुअली आपको ऐसे ट्रांसवर्स ड्यून्स मिल जाते हैं, दिस वंस। ये जो एरो दिखाई दे रहा है ना आपको, सो दैट एरो इंडिकेट्स द विंड डायरेक्शन। ओके, तो ये जो ड्यून्स होते हैं, दोज आर कंसिडर्ड प्रीटी लॉन्ग, बट दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड लो इन हाइट। ओके, विंड का जो सैंड का जो सप्लाई है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो द ड्यून ज्यादा डिस्टेंस के लिए चलता है, ज्यादा डिस्टेंस के लिए लॉन्ग होता है वो, लेकिन हाइट ज्यादा नहीं होती है उस ट्रांसवर्स ड्यून की ना, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है। लेट मी सी इफ वी हैव ट्रांसवर्स ड्यून्स हियर, यस यू डू। ये देखिए, ये नजर आ रहा है, कैन यू मेक आउट दिस ड्यून, दैट इज अ ट्रांसवर्स ड्यून, है ना। तो ये विंड डायरेक्शन है, दिस इज अ विंड डायरेक्शन। वो उस विंड डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा, ये इस तरह से ना परपेंडिकुलर होता है, विंड का जो डायरेक्शन होता है ना उसको परपेंडिकुलर ये ड्यून बनता है। कैन यू सी हाउ दिस एडी इज सेटअप ओवर हियर, ये एडी इस तरह से सेटअप हो जाता है, लेकिन सो एक लॉन्ग रिज बन जाती है यहाँ पे। ये जो अभी मैं इसको ना, वेट अ मिनट, विंड का डायरेक्शन ब्लू में है, राइट, ये ब्लू, सॉरी, विंड का डायरेक्शन रेड में है ना, एरो रेड में दिखाई दे रहा है आपको, यू कैन सी द एडी आल्सो दैट इज बीइंग फॉर्म, तो दिस इज द बार्कन। ओके, तो ये जो मल्टीपल बार्कन्स जब मिल जाते हैं तो ये इस तरह का ट्रांसवर्स ड्यून बनता है। सो ये जो ड्यून्स होते हैं, दे आर एक्जैक्टली पैरेलल टू दी, सॉरी, एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स ड्यून्स। ओके, सो यूजुअली ना ये ऐसे एक अकेला ट्रांसवर्स ड्यून नहीं मिलता है आपको, उसको ऐसे पैरेलल पैरेलल ऐसे मल्टीपल मिल जाते हैं। ओके, so you will find, you find a parallel set of this transverse dunes together. Okay, usually इस तरह से होता है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है सैंड का, इसलिए थोड़े से लो होते हैं हाइट में। ओके, नेक्स्ट यू कम अक्रॉस पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स की खासियत ये होती है कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन सैंडी सर्फेसेस आर कवर्ड विद वेजिटेशन। ओके, पैराबोलिक ड्यून्स तब बनते हैं जब सैंडी सर्फ ऐसे, कि उसको उसके साथ थोड़ा ऐसे कोई एक पेड़ मिल गया है, या ऐसे छोटे छोटे पेड़ होंगे कहीं साइड में, तो उसके साथ ना सैंड अटक जाता है, द सैंड गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दोस लिटिल लिटिल प्लांट्स और दैट स्मॉल वेजिटेशन, एंड उसकी वजह से फिर पैराबोलिक ड्यून्स बनते हैं। ओके, सो दिस इज पैराबोलिक ड्यून्स। ये जो नजर आ रहा है दैट इज पैराबोलिक ड्यून्स। अब पैराबोलिक ड्यून्स का अगर आप शेप ऑब्जर्व करेंगे तो वो बार्कन्स के ऑपोजिट होता है, मतलब बार्कन्स जैसा ही शेप है। कैन यू सी दिस शेप एंड दिस शेप, बार्कन्स जैसा ही शेप है, लेकिन विंड का डायरेक्शन अलग है।
ओके सो यूजुअली क्या हो जाता है ना कि विंड जो होता है वो तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ओके लेकिन अनफॉर्चुनेटली से यहाँ पे कोई छोटा सा पेड़ था, इस पोजीशन पे कोई छोटा सा पेड़ था, तो द सैंड स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन दैट डायरेक्शन एंड देन मेजर सैंड डिपॉजिट जो होता है वो उस पेड़ के आसपास के एरिया में होता है, whereas ये विंग्स जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कम डिपॉजिट हो जाता है। ओके सो दैट इज हाउ दिस इज पैराबोलिक ड्यून्स बनते हैं। ऑलराइट, पैराबोलिक ड्यून्स आर फाउंड इन दिस फैशन। क्लियर? ओके ठीक है। एंड लास्टली यू कम अक्रॉस लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स, ये भी एक सही है। अभी लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स में तो बहुत ही कम सप्लाई सैंड का एंड विंड डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो वंस अगेन लॉन्ग ड्यून्स बनते हैं लेकिन शॉर्ट बनते हैं, वो थोड़े से शॉर्ट मतलब हाइट में थोड़े से कम होते हैं। ये सिंपल है, ये नजर आ रहे हैं आपको? कैन यू मेक आउट दीज ड्यून्स? यहाँ पे एक ड्यून, यहाँ पे एक ड्यून है, यहाँ पे एक ऐसा, एंड दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट। ओके तो ये इस तरह के जो ड्यून्स बनते हैं विंड डायरेक्शन स्ट्रेट एक ही, यूजुअली सारे पिक्चर्स में ना आपको विंड डायरेक्शन सेम दिखाई देगा। ओके सो विंड डायरेक्शन जो होता है वो कुछ इस तरह से है एंड उसी फैशन में पैरेलल उसको मल्टीपल पैरेलल सेट्स ऑफ लाइंस की तरह लॉन्जिट्यूडिनल ड्यून्स भी अरेंज्ड होते हैं। ओके ठीक है चलेगा। स्टार ड्यून्स आसान होते हैं। स्टार ड्यून्स तब बनते हैं दे आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग अ लॉट, है ना? दिख रहा है आपको यहाँ पे? कैन यू मेक आउट दिस वाला ड्यून, ये सेकंड वाला? तो स्टार ड्यून्स तब बनते हैं जब विंड डायरेक्शन ना कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। सो अलग अलग पहले ऐसे इस तरफ से एक ड्यून बना दिया, फिर दूसरी तरफ से दूसरा ड्यून बना दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इट फील्स लाइक अ मिक्स एंड मैच ऑफ मल्टीपल ड्यून्स एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज अ स्टार ड्यून। ओके सो विंड डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहेगा तो स्टार ड्यून्स बनते हैं। गुड क्या पीपल, समझा आपको? एक ही बचा है यार, बाजादास एंड लोइस। एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, कोई बात नहीं, I'll just explain that. Okay यार दिस इज इजियर। मुझे ना फिर बाद में आके एक टॉपिक को ब्रोच करना अच्छा नहीं लगता है। इट इज बेटर इफ वी जस्ट फिनिश ऑफ विंड्स, एओलियन लैंडफॉर्म एंड देन and I feel I can take away a bit of your time from polity because polity का syllabus fortunately इतना बड़ा है नहीं. It is a pretty simple syllabus, whereas geography का बड़ा है. So I hope you guys don't mind if I take a bit of your time from polity. Okay? एंड पॉलिटी में आपको 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, ज्योग्राफी में 20 पूछे जाते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज हियर वी गो। बाजादास, ओके तो बाजादास जो होते हैं वो अभी बाजादा जो है इट इज अ डिपोजिशनल प्लेन। ओके जैसे अपने यहाँ पे फ्लड प्लेन्स वगैरह होता है ना रिवर्स में, वैसे तरह का उस तरह का एक डिपोजिशनल प्लेन जो होगा, ये नजर आ रहा है आपको? ओके ये पूरा ऐसा फैन शेप्ड प्लेन नजर आ रहा है आपको, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ बाजादा। ओके उसको कहेंगे बाजादा। तो ये बाजादास जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड इन डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट रीजन्स। यूजुअली ऐसे अलुवियल फैंस जो होते हैं ना वो कोएलाइज कर जाते हैं, मल्टीपल अलुवियल फैंस कोएलाइज कर जाते हैं। कोएलाइज करना मतलब ज्वाइन करना। ओके सो दे ज्वाइन टुगेदर एंड उसका जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ बाजादा। तो यू कैन सी राइट, ये आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स नजर आ रही है यहाँ पे। कैन यू सी ऑल दोस डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ डिपॉजिटेड अलुवियम? तो ये सारा बट ये सेमी एरिड या एरिड रीजन में होता है। सो वो वहां पे जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ बाजादा। बाजादा इज सिंपली अ डिपोजिशनल प्लेन। ओके लोएस को कंसिडर करते हैं। लोएस जो होता है, लोएस ना मतलब ऐसे बहुत फाइन येलो कलर का डस्ट होता है। ओके very fine yellow dust which is blown from the desert limits into the neighboring lands. Okay usually desert में भी deposit हो जाता है वो, क्योंकि desert का ही dust है वो, so it is deposited over there. ये ना थोड़ा सा loamy होता है, it is rich in lime, तो इसलिए वो color भी वैसा है उसका, and it's very how do you say, बहुत फाइन एंड सॉफ्ट एंड अच्छा होता है वो। सो उसके वो फाइननेस की वजह से दैट डस्ट इज कंसिडर्ड, एंड ऊपर से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स है उसमें, उसकी वजह से इट इज कंसिडर्ड वेरी फर्टाइल। एग्रीकल्चर के लिए काफी फर्टाइल समझा जाता है वो। ओके सो अभी कुछ लोएस्ट जो होता है वो यूजुअली थोड़ा ग्लेशियल भी होता है ओरिजिन में। इट इज नॉट जस्ट डेजर्ट का नहीं है ये फीचर, ये ग्लेशियल भी होता है लोएस्ट इन ओरिजिन। एज लॉन्ग एज यू गेट वेरी फाइन सैंड ना, बहुत फाइन पार्टिकल्स मिल जाए ना आपको, जिसका जो विच आर रिच इन लाइम एंड लोमी एंड ऑल, तो देन इट कैन बी टर्म्ड एज लोएस। ओके अभी लोएस के आपको इस उसको ना लिमोन कहते हैं यूरोप में, दिस इज कॉल्ड एज लिमोन एंड इट इज कॉल्ड एज एडोब इन यूएसए। ओके तो लोएस के ये डिफरेंट नाम जो है वो भी याद रखिएगा। ओके सो लोएस इज कॉल्ड एज लिमोन इन यूरोप, एडोब इन यूएसए। ऑलराइट लोएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज द येलो रिवर। ओके येलो रिवर
चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ईस्टर्न पोर्शन में उसके। ये रिवर क्या क्या इशू है ना कि इसके आजू बाजू का जो एरिया है वो लोएस्ट प्लेटो है। ओके, तो ऑल दैट लोएस्ट फ्रॉम दैट लोएस्ट प्लेटो इज ब्लोन ओवर इनटू दिस रिवर। और ये रिवर ऐसा येलो कलर का नजर आता है कि यू सी यहाँ पर ये ऊपर दोनों सेक्शन दोनों ये येलो रिवर के ही है। So वो river ना, it actually looks as a pretty yellowish in color, a little brownish depending on where you're seeing it. So the river, it is because of all that loess that is blue. Okay, yellow river को locally Vanga कहते हैं, it seems वहाँ पे Vanga, हाँ, वाह 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 Vanga. Okay, that's how it's pronounced. ठीक है, चलेगा क्या? Good. And we are done with desert landforms. Okay, now we move on to polity. You guys have not said anything, but I'm assuming you've understood everything. So we'll just go on with that. ठीक है, चलेगा. Let's move forward. 1 minute. All right. Just a quick reminder of what we were doing yesterday. All right. जो हम कल कर रहे थे, that is looking into the procedure for amendment of the constitution. Okay, मैंने आपको clearly बताया था कल भी और दोबारा से repeat कर रही हूँ just to revise your memory कि ये जो process होता है amendment का, that can be done in 2 ways. Okay, either you you know it is done under Article 368. There are a few provisions that are modified or amended under Article 368, and then there are a few provisions in the Constitution that can be modified outside or amended outside Article 368. Okay, you do not need to use Article 368. So even now, let's consider Article 368 itself. Okay, within Article 368 also, there are 2 ways in which amendments can be done. Okay, matlab there are provisions clearly. There are those provisions that require only the approval of the parliament. Okay, only the Lok Sabha and the Rajya Sabha, both houses of the parliament, have to agree, and they have to do so with a special majority. Okay, then there are those provisions that require that approval of the parliament, or rather approval of the Lok Sabha and the Rajya Sabha with a special majority in each house, and also along with that a ratification from at least half of the states. Okay, कम से कम आधी states ने ratification करना चाहिए. मतलब उनके जो legislatures है, state legislatures है, विधानसभा जिसको हम कहते हैं, वहां पर ये बिल को approval मिलना चाहिए. That is what it means. Okay, so this is the way of doing it. Article 368 अगर आप apply करते हैं amendment के लिए, तो it has to be done only with a special majority. Okay, मतलब special majority मतलब वो मैं अभी कल आपको वही एक्सप्लेन करने वाली थी कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है. मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड ये वाला मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. ये दोनों conditions satisfy होनी चाहिए. Then that would be called as the special majority. Okay, if you are doing this amendment outside Article 368, then you can do so with a simple majority. Okay, आप simple वो 51% vote से भी काम चला सकते हैं. You don't need to go ahead and fetch this special majority. समझा आपको फर्क amendment के procedures का? It can be, it is depending on what provision of the constitution one is amending. It will depend on whether it can be done with a special majority or a simple majority. And even within the special majority, you have to figure out under Article 368, there are those provisions that will require just the Lok Sabha and the Rajya Sabha to agree, and then those that will require Lok Sabha and Rajya Sabha to agree along with half the states to agree. Okay, so ऐसे 2 different procedures मिलते हैं. Is this good? समझा? Okay, now we'll move on to, अब कल हमने उसके basic provisions देख लिए, basic introduction करवा लिया था amendment of the constitution को, कि कौन से part में होता है and who is responsible for doing it and so on and so forth. We had checked out all those provisions that you know ये वाले provisions that can be which are outside the scope of Article 368. जो simple majority से amend होते हैं. Okay, you just require a simple majority, so they can be amended with a simple majority. So these are those provisions. Now you move on to those provisions that require Article 368. Okay, अभी ये जो है इसमें ना, let's try to understand special majority ताकि you have no confusion about what a special majority means. Okay, special majority Article 368 के लिए लगता है. Along with other cases, there are other cases also जहाँ पे आपको लगता है, लेकिन Article 368 के लिए बहुत जरूरी है. अभी
आर्टिकल 368 जब अप्लाई करते हैं तो एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, एंड बोथ दीज हाउसेस हैव टू पास दिस बिल सेपरेटली. ओके, किसी भी हाउस में इनिशिएट कराओ, लोकसभा में, राज्यसभा में, विच एवर हाउस इनिशिएट्स द बिल, it has to pass in that house with a special majority, then it has to move on to the second house and it has to be passed there also with a special majority. Okay, that's how this process works. And if there are states to be done, then like yes, another 14 states in India also need to agree. Okay, chalega. Now how the special majority works is, I was telling you yesterday कि so let's मान के चलते कि कोई जिसको जो कोई हाउस कंसिडर करे ना उसका 100 मेंबरशिप है. ओके, लेट्स से देयर आर 100 मेंबर्स इन दैट हाउस. ओके, परसेंटेज के हिसाब से चलते हैं. नाउ व्हाट डज अ सिंपल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट? बोला है ना, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कम से कम कितने लोगों ने वोट करना चाहिए हाँ बोलने के लिए? 51 पीपल, है ना? दैट इज द मेजॉरिटी. ये मेजॉरिटी मेंबरशिप है हाउस का, है ना? दिस इज द नॉर्मल मेजॉरिटी मेंबरशिप ऑफ द हाउस. फॉर अ हाउस ऑफ 100 पीपल, half plus 1 should give you the majority. Okay, ठीक है? So that would be the majority. Now what is a majority of, and the second condition that needs to be fulfilled is majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. Okay, अब रोज 100 people won't be in the house, है ना? जिस दिन ये the bill is finally tabled for voting, जिस दिन उसको टेबल किया कि चलो आज के दिन वोटिंग करना है इस बिल पे, तो उस दिन से suppose there were 60 members in the house. Okay, let's say that there were a total of 60 members in the house. You still have the quorum, so you can continue with your business. So you have 60 members. Okay, अब let's say ये जो 60 members है, मैं इंक चेंज कर रही हूँ. Okay, let's say ये जो 60 members है, okay, तो इसमें से अपना कंडीशन क्या है कि 2/3 लोगों ने वोट करना चाहिए. ओके, लेट्स से कि 2/3 लोगों ने वोट करना चाहिए, तो कहेंगे कि बिल पास हो गया. ओके, तो लेट्स से इनमें से 2/3 माने कितने होते हैं? 40. Okay, so 40 people have voted for it. All right, we'll go with 45. 2/3 से ज्यादा majority मिला अपने को. Okay, we got a higher majority than 2/3. So 45 people agreed. All right, this 45 is still less than 51. So not work. ये condition काम नहीं करता है. Even if आपका second condition satisfy हो गया है, first condition satisfy नहीं होता है इस case में. समझा आपको? Did you understand this? All right. Now let's move on to another case. Okay, अभी दूसरा केस कंसिडर करते हैं अपने पास कि 60 पीपल नहीं है, थोड़े से ज्यादा लोग हैं. ओके, या फिर 60 पीपल को ही कंसिडर करते हैं. लेट्स गो विद 60 पीपल. ओके, इस 60 पीपल में से इतना ज्यादा लोगों ने अग्री किया कि लेट्स से 55 पीपल अग्रीड. ओके, नाउ वी आर स्टिल, सेकंड कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो गया है. योर 2/3, आपको 2/3 का मेजोरिटी है प्रेजेंट एंड वोटिंग में से. दिस इज प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके, पीवी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग 60 थे, सो उसमें से 55 पीपल अग्रीड. ओके, नाउ दिस 55 इस इसकी वजह से आपका सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया है. इस 55 ग्रेटर देन 51 और इक्वल टू 51? यप, ऑफ कोर्स. तो आपका फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, इन विच केस द बिल विल बी पास्ड. ओके, लेट्स सी, एक और कंडीशन कंसिडर करते हैं. अभी 60 नहीं, कुछ 75 मेंबर्स है. नहीं यार, 80 मेंबर्स पकड़ के चलते हैं. ओके, लेट्स गो विद 80 मेंबर्स. हम कहते हैं कि कुछ 80 मेंबर्स है. ओके, और सम वंस अगेन कुछ 56 पीपल वोटेड और 54 पीपल वोटेड. ओके, तो 54 इज स्टिल, उसमें इस कंडीशन में भी 54 पीपल ने हाँ बोला. ओके, सो दिस इज स्टिल ग्रेटर, है ना? you still have the majority, you have the majority, right? 67 into 8 आना चाहिए, majority तो चाहिए अपने पास. इतना बुरा तो मैथ्स नहीं हो सकता यार मेरा. चलो टेल मी, सही है क्या? हाँ हाँ, we are good. Okay, so 54 people voted yes. Okay, so we are still above the cut. हमने अभी भी ये सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया है. 67 लोगों, 67% से ज्यादा लोगों ने हाँ बोला. ओके, एंड ये 54 51 से भी ग्रेटर है. सो हमारा फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप इज आल्सो डन. ओके, यू अंडरस्टैंड हाउ आई अराइव्ड एट द फिगर 51, राइट? इट इज द मेजॉरिटी ऑफ दिस टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो एक्चुअल मेजॉरिटी है उस हाउस का वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए. एंड उस दिन जितने लोग, जिस दिन बिल पास हो रहा था, उस दिन जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग थे, यू नो, नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसका एक 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए. ये दोनों कंडीशंस जिस केस में सेटिस्फाई हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल मेजॉरिटी. आर वी गुड? ओके, ठीक है, चलेगा. तो अभी द प्रोसेस इज, अमेंडमेंट का प्रोसेस ही होता है
कि आपको दोनों हाउसेस का कंसेंट चाहिए, एक किसी भी हाउस में इनिशिएट कर लो, दैट इज फाइन, बट यू रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ हाउसेस, ओके। जॉइंट ये नहीं ले सकते आप, जॉइंट सेशन नहीं हो सकता है। वन हाउस हैज टू पास द बिल, उसके बाद बिल दूसरे हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस ने पास नहीं किया तो बिल खत्म हो जाएगा। यू कांट आस्क दैट अदर हाउस टू रिकंसिडर, ये वो ऐसा सब नहीं चलता है, ओके। दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस इन अमेंडमेंट का बिल, ओके। It has to be passed by special majority in both houses of the parliament, okay, separately pass करना पड़ता है, we already figured out what that is। बिल प्रेसिडेंट को दिया जाता है, who shall give his assent, this is proper text constitution का language, the president shall give his assent, उनको compulsory है, it's mandatory for the president to say yes, okay, to give his approval, ठीक है, चलेगा। Now let's look at all those provisions जिसमें आपको पार्लियामेंट का भी कंसेंट लगता है एंड स्टेट्स का भी रैटिफिकेशन लगता है, ओके, पार्लियामेंट एंड स्टेट्स दोनों का कंसेंट लगता है। ऐसे वाले कौन से प्रोविजंस होते हैं? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, व्हाई? बिकॉज प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यूनियन एंड स्टेट्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव समझे जाते हैं, ओके। फेडरल हेड ना हमारे, सो क्लियरली स्टेट्स का से होता है इसमें। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के साथ डील करता है। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑल्सो रिक्वायर, इसके साथ अगर कोई चेंजेस करने हैं और you want to fiddle with these amendments, तो फिर you will require the consent of the states as well, okay। Supreme Court and High Courts once again same है, जुडिशरी को लेकर decisions लेंगे तो फिर then उससे related provisions में states का say होगा। Distribution of legislative powers, so whether you choose to distribute the executive power or the legislative powers, the states should be involved। Goods and सर्विस टैक्स काउंसिल, इसके केस में भी टैक्सेस जब आप डिस्कस करते हैं, स्टेट का शेयर कितना, यूनियन का स्टेट शेयर कितना, टैक्सेस जब एक्सट्रैक्ट करते हैं पीपल से, सिटीजन से, तो उसके ऊपर देयर इज अ शेयर डिसाइडेड कि कलेक्ट कौन करता है, यूनियन करता है, स्टेट करता है, किसका शेयर कितना होता है। अभी हर चीज पे जीएसटी लगता है, राइट। एंड हैव यू नोटिस्ड हाउ, आई मीन बिल जब आता है, हैव यू एवर सीन हाउ दैट बिल गोज, तो वहां पे 18% का टैक्स होता है, 9% इज द स्टेट टैक्स एंड 9% इज द यूनियन टैक्स। हैव यू एवर सीन दैट? देखा है कभी आप लोगों ने? Anyways, but that's how it works, okay। Any of the lists of the seventh schedule once again distribution of powers, federal list है वहाँ पे आपकी, it is legislative powers का distribution है कि state union कौन से subjects पे laws बना सकता है, okay। So that is what federal lists are। Then representation of states in the parliament, okay। तो states का जो boundary है या उनका area है, उसके साथ कुछ मतलब पार्लियामेंट जो चाहे करे सो करे, उस वो तो सिंपल मेजोरिटी में ऑल्टरेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है इन द पार्लियामेंट कि कौन सी स्टेट को कितने सीट्स होंगे या फिर सो ऑन सो फोर्थ, वेदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा, तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रोविजंस होंगे, सो फॉर दैट यू विल यूजुअली रिक्वायर रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ओके। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 368 इटसेल्फ को अमेंड करना हो तो भी आपको स्टेट्स का रैटिफिकेशन लगेगा। समझा? इज दिस गुड? तो ये बिल वंस अगेन पहले पार्लियामेंट क्लियर करता है, फिर हाफ द स्टेट्स क्लियर कर देंगे, तो फिर उसके बाद उसको प्रेसिडेंट को भेजा जाता है एंड शैल गिव हिज असेंट, ओके। प्रेसिडेंट को हाँ बोलना ही बोलना पड़ता है, ही और शी हैज नो ऑप्शन, ठीक है, मैंडेटरी होता है उनके लिए। समझा? अभी गुड? ये बाबा ये लर्न कर लीजिएगा, ये जितने भी अमेंडमेंट्स है ना, just major amendments है, simple है, so just go through them, try to remember them, memorize them as much as possible, because UPSC loves to offer this question। आपको amendments match करने पड़ते हैं, at least जितने भी famous amendments है ना, उसको तो match करना पड़ता है। So here it is, first amendment से 9th शेड्यूल ऐड किया था, वो जिसमें हमारे सारे अग्रेरियन लॉज एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड ऑल डाले ना हमने, जिसको हमने बोला था इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते। Then 2007 में Supreme Court, I remember it was January 2007 when the Supreme Court finally came up with the thing here, there is nothing outside the purview of judicial review, okay, everything lies within the judicial, anything that is included within the constitution shall be up for judicial review, okay। and तब से फिर हमने वो change किया था। So 9th schedule doesn't work like that anymore the way it used to work earlier, okay। so ये first amendment ने 9th schedule को add कर दिया था, okay। 7th amendment important था,
it had the provision of a common high court for 2 or more states. ये वाला provision introduce किया था. It became easier because you can't have a high court for every state. It is like imagine your time कौन सा था 1956. Okay, so we did not have that. How do you say? We did not have the resources or the manpower to put up a high court in every state. So it made sense कि जो छोटे states होंगे आजू बाजू के जैसे गोवा एंड महाराष्ट्र का है. So it doesn't make any sense to have a separate high court in Goa. So it is better to have share the high court in Maharashtra, and then you can have a bench at Panji and so on and so forth. Okay, so that was done. And introduction of union territories, ये एक नया concept लाया था हमने union territories का. Okay, 9th amendment important है. This is a important thing. इसके साथ वो बेरुबारी union जो है वेस्ट बंगाल का एक province था, तो उसका हमारा ना एक तभी पाकिस्तान ओके इंडिया के ना इस तरफ लाइक अब ये क्या यार मैं आपको बता रही हूँ. आई डोंट थिंक आपको ये कभी पूछा जाएगा, बट वी आर स्टिल गोइंग टू लुक एट दिस. ओके, ये रहा इंडिया, बीच में इंडिया है, लेफ्ट हैंड की तरफ पाकिस्तान है. अभी इसको हम बांग्लादेश कहते हैं ना, ये छोटे वाले सेक्शन को, दिस सेक्शन को हम अभी बांग्लादेश कहते हैं. प्रायर टू 1971 दिस प्लेस वाज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान. इस प्लेस को वेस्ट पाकिस्तान कहते थे और इसको पाकिस्तान ही हुआ करता था, बट सिंस वो इंडिया के दोनों तरफ बटा है, सो वी यूज्ड टू कॉल इट वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. ओके, सो बांग्लादेश यूज्ड टू बी कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान. तो हमारा पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट था कि हम उनका थोड़ा टेरिटरी ले लेते हैं एंड उनको हमारा थोड़ा वाले प्रोविंसेस दे देते हैं. ओके, दैट वाज द पार्टीशन वाला अग्रीमेंट था. तो उस केस में वो बेरुबारी यूनियन का केस बना था. वेस्ट बंगाल ने बोला नहीं करना है, because it becomes a problem to cede a few of your territories. वेस्ट बंगाल का टेरिटरी जा रहा था, राइट? तो वेस्ट बंगाल ये स्टेट ने नहीं बोला. Union went and referred to the president referred the case to the Supreme Court. अब वो केस रेफरल इसलिए था because वो prior to the constitution है. ये जो भी agreement था वो prior to the constitution है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए वो रेफर्ड केस हो गया. उसका ओरिजिनल ये नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ओरिजिनल jurisdiction का पार्ट नहीं है वो. So सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द आइडिया कि यार यू कांट सीड योर टेरिटरीज. ओके, आपको एक सेपरेट अमेंडमेंट करना पड़ेगा because the constitution does not allow a government to cede its territories, to cede its land. इंडिया का जो टेरिटरी है ना वो किसी और कंट्री को ऐसे दे सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते. ओके, यू कांट गिव अवे योर लैंड. तो फिर उसके लिए हमने एक अमेंडमेंट किया एंड हमने बोला वी आर सीडिंग दीज टेरिटरीज बिकॉज हमको भी पलट के मिल रहे थे, राइट? दैट वाज द ओरिजिनल अग्रीमेंट. वी वर सिंपली ट्राइंग टू फुलफिल द अग्रीमेंट. ओके, सो दैट वाज द 9th अमेंडमेंट एक्ट एंड द बेरुबारी यूनियन केस. ऑलराइट, 19th amendment देख लीजिएगा. 19th amendment gave the high courts to they empowered the high courts to hear the election petitions. ये बहुत important amendment है. It allows all the जितने भी अपने election petitions होते हैं, whether that election MLA हो MP हो जो भी हो, तो उनके सारे election petitions जो होते हैं वो सीधे high court में चले जाते हैं. Okay, because वो particular state जो होगा तो वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस किसी हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में लाई करता है वो हाई कोर्ट ये केस सुनता है. ओके, सुनता है मीनिंग द हाई कोर्ट हियर्स द केस. वहां पे सू किया जा सकता है, वहां पे इलेक्शन पिटिशन लॉन्च किया जा सकता है. ओके, नाउ 24th amendment, ये बहुत important amendment है. Remember, we had come across that President's assent to the constitutional amendment bill, okay, was made compulsory. Among other things, 24th amendment हमने देखा था 24th amendment made it very difficult. गोलकनाथ के बाद आया था and it made it जितने भी changes गोलकनाथ ने suggest किए थे या जो भी ये बोले थे वो सारी लूप होल्स 24th amendment ने कवर कर लिए. Okay, so this particular amendment made it compulsory for the president to say yes. president ने हाँ बोलना है बिल को. ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया जाता है उनको तो द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज द बिल. 25th अमेंडमेंट ने 19 इसमें ये राइट टू प्रॉपर्टी वाज curtailed मीनिंग उसको थोड़ा सा उस पे लिमिटेशंस आ गए. ओके, सो प्लीज रिमेंबर वी आर स्टिल curtailed. ओके, now you come across the 26th amendment act. 26th amendment act took away all the privy purses के जो ये थे ना privileges, वो सारे ले लिए. ओके, प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश कर दिया एंड जितने भी प्रिविलेजेस थे फॉर्मर प्रिंसली रूलर्स के, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के, उसको सब कुछ अबॉलिश कर दिया. मेजर चेंज इन आवर पॉलिटी and in our political system and in general the civil case, मतलब civil
सिविल कंडीशंस ऑफ आवर सोसाइटी एंड आवर कंट्री, तो मेजर्स चेंज हुआ था ये 26th अमेंडमेंट की वजह से. ओके, देन यू कम टू 31st अमेंडमेंट. लोकसभा की इंक्रीज हो गए हमारे, फिलहाल वो वही है ना 55 के अराउंड की सीट से. सो दिस इज योर थिंग. ओके, सो ये 31st अमेंडमेंट था. 36th अमेंडमेंट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया. ये पूछा जाता है. मैंने आपको जब सिक्किम की बात निकली थी ना, तो आपको क्लियरली दो अमेंडमेंट्स बताए थे. एक 35th अमेंडमेंट जिससे सिक्किम के जो रूलर हुआ करते थे उनकी पोजीशन को अबॉलिश कर दिया, एंड 36th अमेंडमेंट जिससे सिक्किम ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया. ओके, सिक्किम वाज ऑफिशियली ज्वाइंड विद इन द इंडियन यूनियन. ओके, 42nd अमेंडमेंट. we've already discussed 42nd amendment to know मतलब कितना डिस्कस किया है हमने उसको. इट इज कॉल्ड एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे उसने, एंड we've already studied it. Okay, so this was in 1976. Okay, then come across the 44th amendment. Remember what happened with the 25th amendment? Right to property was created. Okay, this removed right to property from part 3 and it made it a legal right. Okay, fundamental right रखने की जरूरत ही नहीं है. We'll just make it into a legal right. It just becomes less number of cases to be lodged into the Supreme Court. And then you come across the 52nd amendment. ये interesting है, ये आज भी मैटर करता है आपको. 52nd amendment 1985 में ऐड किया था. एक नया 10th शेड्यूल ऐड किया हमने. ओके, वी एडेड अनदर शेड्यूल. ओरिजिनल 8 शेड्यूल्स थे, 9th शेड्यूल हमने यहीं पे ऐड कर दिया 51 में. एंड देन इट टुक अस अनदर 35 years 34 years टू गो एंड ऐड अ 10th शेड्यूल. ओके, तो इसने ना एंटी डिफेक्शन लॉज को डिफाइन किया. एंटी डिफेक्शन लॉज माने suppose a person belongs to a party A. Okay, and usually ना आप उस पार्टी के टिकट पे, वो पार्टी जब आपको टिकट देता है तो उस पार्टी के मतलब आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्शंस में. ओके, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, बट यू आर सर्टेनली रिप्रेजेंटिंग द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. ओके, जब आपको टिकट दिया जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, देन आप उस टिकट के बेसिस पे इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं. एंड यू आर से आप किसी विधानसभा में या फिर लोकसभा में, राज्यसभा में चले जाते हैं. ओके, दैट इज हाउ इट वर्क्स. But you clearly, unless you are an independent candidate, you clearly represent the political party. Okay. Now what happens is once you represent that political party in that particular house, जिस किसी house में आप, whether विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा or whatever, तो आपको एक certain you have to follow some certain rules. जैसे वो पार्टी जो बोलेगा उस तरह से वोट करना, क्योंकि that is the whole logic, right? इसीलिए तो आपको पार्टी का टिकट दिया है, इसलिए तो you're a representative of the political party, so that you vote according to the whatever the party decides. तो अगर पार्टी किसी एक बिल के लिए वोट करना चाहता है वो पार्टी, तो फिर उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स उस हाउस में बैठे हैं उनको बोला जाता है क्लियरली कि आपको उस तरह से वोट करना है. ओके, सो अगर आप उस तरह से, इफ यू डोंट फॉलो दोज रूल्स, अगर आप वो जो पार्टी ने बोला है इस बिल के लिए वोट करना है या इस बिल के लिए वोट नहीं करना है, लाइक यू हैव टू एब्सटेन और यू कैन नॉट, यू हैव टू वोट नो और समथिंग लाइक दैट, जो भी बोलता है पार्टी वो सुनना पड़ता है. ओके, आपको. एंड अगर ये आप नहीं करते हैं, इफ यू डोंट डू दिस, और देन इफ यू जस्ट डिसाइड टू अबैंडन योर पार्टी एंड गो एंड ज्वाइन सम अदर वन, okay, while you are in the middle of your tenure, if you just abandon that party A that you were a part of and then go and join some other party B, then that also becomes defection. Defection का मतलब होता है दल बदलू बना करना. Okay, you change defect करना, जो आपका ओरिजिनल कोर्स था उससे अलग कोर्स ले लेना, that is called as defection. तो ये डिफेक्शन ना हो विद इन द हाउस, उसके लिए कुछ एंटी डिफेक्शन लॉज बताए गए थे, and that is what the 10th schedule talks about. So please remember this. Favorite topic होता है यूपीएससी का because हमारे यहाँ पे political situation में हमेशा defection होते रहता है, right? We find a lot of cases in the current political scenario. So in fact, we have had defection cases for a very, very long time. Okay, not even in the current political scenario, we've always had them. So defection constantly होते रहता है. So especially जितने elections, जैसे ही elections करीब आते हैं ना, तो you will find more and more people defecting. एक पार्टी को छोड़ो दूसरे में चली जाओ, इसको छोड़ो वहां चली जाओ, that sort of thing. So उसके लिए ये डिफेक्शन ना हो, इसके लिए आपके पास, दिस इज टू मच ऑफ chaos, right? So वो ना हो इसके लिए you have this 10th schedule added over there. Okay, कि क्या what would constitute as a defection, and then उसके लिए solutions क्या है, punishment क्या है, and so on and so forth. Okay, then you come across the 61st amendment. This is important. 61st amendment talks about the voting age. इंडिया में जो voting age था ना, that was decreased for both Lok Sabha and legislative assemblies to 18.
21 एज हुआ करता था. We used to have this age of this, what do you say, 21. We lowered it to 18. Okay, so that happened. Okay, ठीक है. Then you come across 65th Amendment. Okay, chal, 65th Amendment was cool enough. 65th Amendment said कि एक multi-member national commission for SC and ST establish करते. Okay, let's have a national commission for SC and ST. 69th Amendment ये important है. ये once again because it talks of a very specific event, ना? Union Territory of Delhi को NCT का ये दिया गया, National Capital Territory of Delhi. ये special status दिया गया. Okay, so that became important, and then वो उस पर्टिकुलर इसके लिए उस फॉर दिल्ली उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टेब्लिश कर दी गई जिसका स्ट्रेंथ 70 मेंबर्स का था एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रेंथ 7 मेंबर्स का होना चाहिए. ओके, तो दैट इज व्हाट हैपेंड. 73rd and 74th amendments are extremely important amendments. They talk of local urban and rural local governments. Okay, so panchayati raj as an rural local government, and urban local bodies मतलब municipalities, municipal corporations as urban local government. Okay, तो इन दोनों के साथ डील करता है. 73rd amendment 1992 this gave panchayati raj institutions a constitutional status. Okay, उसके साथ एक part 9 and 11 schedule ऐड कर दिया गया which clearly depicts, वो जो 11th शेड्यूल है ना उसमें क्लियरली बताया गया है कि पंचायत के पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, किस किस केस पे पंचायत ग्राम पंचायत जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेशंस एंड लॉज बना सकता है. ओके, विद इन देयर ओन स्फीयर ऑफ वर्क. एंड सिमिलरली सो this happened and a panchayat municipal corporation or municipal council वगैरह जो भी होगा depending on which कितना बड़ा province है या कितना बड़ा area है उसके हिसाब से you can have a municipal corporation or a municipal council or नगर पंचायत or whatever. तो ये जो urban local bodies थे उनको constitutional status grant कर दिया गया. And similarly you had the 12th schedule and part 9 है. So once again 12th schedule जो होता है it will give you a list of all those subjects over which the municipal corporation can make laws. वो legislate कर सकते हैं, वो अपने अपने लॉज बना सकते हैं एंड क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ ये सब कुछ उसमें लिखा गया है. ओके, 86th अमेंडमेंट वाज इजी. ये आपको शायद याद रहता है, आरटीआई के साथ राइट टू आरटीई के साथ रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन के साथ रिलेटेड था वो. इट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट. ओके, एंड एक नया फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दिया हमने वहां पे. 92nd अमेंडमेंट वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अब के सारे अमेंडमेंट्स आगे इंपॉर्टेंट है. हमारे ओरिजिनल शेड्यूल में ना 14 लैंग्वेजेस हुआ करते थे. हाँ, then we went ahead and added another 4, so that became 18. And then this particular 2003 का जो amendment था that went and added another 4, Bodo, Dongri, Maithili and Santhali. तो ये 4 languages आपको पता होने चाहिए यार, even because ये recently added है. These ones are the recently added languages. Okay, तो ये 8 schedule को add कर दिए गए and that happened. Okay, then 95th amendment जो था 95th अमेंडमेंट वो 2009 में आया था. दैट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशंस फॉर एससी, एसटी एंड एंग्लो इंडियंस जो थे लोकसभा में एंड राज्यसभा में टिल 2020. वी आर डीलिंग विद अनदर अमेंडमेंट जो 2020 में चेंजेस किए हमने, सो वो भी हम डील करते हैं. 97th अमेंडमेंट टॉक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला. सो प्लीज रिमेंबर योर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बिकॉज ऑफ द 97th अमेंडमेंट 2011. ओके, 100th अमेंडमेंट ये हमने बांग्लादेश के साथ वापस वो बेरुबारी जैसा ही एक लैंड अग्रीमेंट वाला टेरिटरी कर लिया था. कुछ एनक्लेव्स हमारे कुछ आपके एक्सचेंज कर लेते, तो उस हिसाब से वो किया था. ओके, 101st वाज इजी, जीएसटी से रिलेटेड था, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया हमने. 102nd अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. ओके, तो दिस नीड्स टू हैपन यार, सो वो किया हमने. 103rd अमेंडमेंट जो था it came up with this amendment कि वो 10% reservation मिलना चाहिए economically weaker sections of the society को other than socially and educationally backward classes. Okay, meaning see normally हमारे यहाँ पे reservations caste based basis पे दिए जाते हैं. Okay, कि scheduled caste and scheduled tribes and then backward classes वगैरह जिसको हम कहते हैं, या OBC वगैरह other backward classes जिसको हम कहते हैं, तो उस basis पे usually reservations दिए जाते हैं. Now this came up and said कि other than these classes, other than these classes, there are those people जो economically weaker sections of the society को belong करते हैं. Okay, EWs जिसको हम कहते हैं, तो जिनका income level high होता ही नहीं है, तो उनको भी 10% reservation दिया other than
द पीपल जो एक सर्टन कास्ट को बिलोंग करते हैं, ओके, एंड उनको जो रिजर्वेशंस मिलते हैं. अदर देन दैट यू हैव अनदर 10% ऑफ रिजर्वेशन, ओके. एंड नेक्स्ट यू कम टू 104th अमेंडमेंट 2020 का. ये वाला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउ वी ग्रांटेड, रिमेंबर हमने पहले 99 ये वाला अमेंडमेंट किया था, 95th अमेंडमेंट है ना. उसने बोला था कि SC ST एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन है उसको 2020 तक एक्सटेंड कर देते हैं, ओके. नाउ ये वाला जो 104th अमेंडमेंट है उसने बोला SC ST को और 10 साल के लिए रिजर्वेशंस दे देते हैं इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, SC ST कास्ट के मेंबर्स को. एंड एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन है उसको कैंसिल कर दिया, उसको निकाल दिया. सो वी आर डन विद द रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस बिकॉज द गवर्नमेंट थॉट दैट वी आर, rather the parliament thought that we are properly represented. I mean Anglo Indians are enough represented. So वो निकाल दिया, ठीक है. That brings us to the end of this particular thing. कल से ना हम यूनियन करते हैं, okay. We'll begin with the Union of India. Now when we talk about the Union of India ना, तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ कि हम क्या, okay. When we talk about the Union of India, what we do talk about is this. इसको इसमें बेटर मिलेगा. हाँ, सी ये इसके बारे में बात करते हैं. पहले हम एग्जीक्यूटिव के साथ डील करते हैं. सो विल डील विद द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट. तो डेफिनेशन क्या है, पावर्स क्या है, उनके पावर्स का, एंड प्रेसिडेंट के पावर्स का एक अलग से क्लासिफिकेशन मिलता है आपको. अलग अलग पावर्स एंड ड्यूटीज जो होते हैं उनके, उसका ये मिलता है, क्लासिफिकेशन मिलेगा आपको. मल्टीपल स्फीयर्स में होती है, राइट. मिलिट्री पावर्स अलग एंड जुडिशियल पावर्स अलग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स अलग एंड लेजिस्लेटिव पावर्स अलग एंड ऐसे अलग अलग पावर्स होती है, राइट. So you will get those. And then उसके बाद you deal with the prime minister, president and vice president के साथ you deal with the prime minister and the council of ministers, and then the attorney general and so on so forth, okay. तो ये different officers of the union के साथ हम कल से deal करना शुरू करेंगे, alright, ठीक है. So once again thank you very much for joining me and guys, goodbye and take care.